Very good morning, students. Now we comes on 16th lecture of successive differentiation, and in previous lectures we have seen indeterminate forms, and now we continue with that indeterminate form. We will see some more problems on that. Here is the problem: determine a b c so that as theta tends to 0, the expression theta into in bracket a plus b cos theta minus c sin theta upon theta raised to the power 5 shall tends to limit unity. So what you have to find? First we have to find the value of ABC. What we are given? Here we are given that theta tends to 0. That means limit theta tends to 0, then that expression should tends to limit unity. मतलब इसके limit की value जो है this expression की, that is unity, that is a 1. So first you have to write in the form of expression. So that is limit. We consider that let. Here we consider that as a L. Let L is equals to that limit, or we can write directly in the form of limit also. That is a limit theta tends to 0, that we have given. Theta into a plus b, we write the expression cos theta minus c sin theta upon theta raised to the power 5, and we have given the value of that limit, that should be unity, that we have given. What we have to calculate? We have to calculate a, b and c. So we will see how to calculate that a, b, c. So सबसे पहले तो हम इसका फॉर्म देखेंगे. When we put theta is equals to 0, 0 into something becomes 0. Here is a sign 0, 0, that is also 0. So our form is a 0 by 0. First we have to reduce that form. हमें रिड्यूस करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, एंड देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. अब कैसे निकलते हैं वो वन बाय वन हम देखेंगे. अब सबसे पहले हम यहाँ पे तो कॉचीज रूल अप्लाई करेंगे. क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज द फॉर्म इज 0 by 0. So by the Cauchy's rule or by Cauchy's theorem, how we can do? We take a numerator and denominator derivative. So that is we apply the derivative here. So limit theta tends to 0. देखिए तो थोड़ा इधर ले लेती हूँ मैं. So our steps we can easily put there. Limit theta tends to 0. There is a two terms theta into that bracket. So we have applied the product rule. So derivative of theta is a 1 into a plus b cos theta plus second time theta remain as it is. That is a is a constant, so it become a 0, and b as it is, and derivative of cos theta with respect to theta is a minus sin theta. So that can be written as minus of b into sin theta, and then there is a minus c. Derivative of sin theta is nothing but a cos of theta, and in denominator derivative of theta raised to 5 is a 5 into theta raised to the power 4, as we are taking a derivative with respect to theta, as the limit is theta tends to 0. ये थीटा के फॉर्म में है. अब थोड़ा अगर हम अगेन चेक करेंगे, व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 इज 1. सो a प्लस बी प्लस यहाँ पे साइन 0 0, तो टोटल टर्म 0 हो जाएंगे, बट यहाँ पे cos 0 इज 1, सो दैट देयर इज अ माइनस सी. सो a प्लस बी माइनस सी. न्यूमरेटर क्या होगा? a प्लस बी माइनस सी. सो वी राइट हियर एज थीटा टेंड्स टू 0 अगर हो रहा है तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू क्या होगा? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0. But if you consider the RHS is a 1 and it is a finite. Here RHS is finite. So what we can take? That numerator a plus b minus c is that numerator, denominator is a 0, RHS is a finite, so that denominator transport to that side, it become a 0. So what we get? A plus b minus c is equals to 0. That implies a plus b minus c equals to 0. How we can get that a plus b minus c equals to 0? Numerator, अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि न्यूमरेटर क्या आने वाला है आपका a plus b minus c as theta tends to 0. डिनोमिनेटर में 0 होगा, और RHS क्या है हमारी? 1 है. सो दैट इम्प्लाइज ये 0 ट्रांसफर टू दैट साइड, सो इट गिव्स a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है वहां पे? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो रिलेशन हमारे पास है दैट इज a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. सो वी गेट सम
रिलेशंस फ्रॉम दैट इज a प्लस बी माइनस सी. और एक स्टेप हम यहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं, लगे तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. वी राइट दैट स्टेप हियर. वी राइट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज हियर. ओके, and there is limit theta tends to 0. We take a collect the common terms. Here is a b cos theta, here is a minus c cos theta, so cos theta get a common. So how we write that? A plus cos theta common निकालेंगे, cos theta get a common. b, here is a minus c, so b minus c minus यहाँ पे क्या होगा, minus of theta b sin theta, theta b sin theta, and here is a theta raised to the power 4. ये जो 5 है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, so that become a 5. ऐसे फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब ये जो रिलेशन है हमारा, फ्रॉम दैट रिलेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट ब्रैकेट b माइनस सी. अब b माइनस सी की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, दैट इम्प्लाइज b माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए. हम क्या करेंगे, b माइनस सी इज इक्वल्स टू दैट a ट्रांसफर टू दैट साइड, सो इट बिकम अ minus a, and then finally we replace that b minus c by minus a. So what we have to do to find the values of a b c, we have to reduce that constant. एक एक constant हमें कम करते जाना है, फिर finally हमें एक constant की value मिलेंगी. By using the value of that constant we put in some relation like that, then from that we get another constant, then putting the values of first and second constant we get the value of third constant. In this way we solve this problem. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b माइनस सी की वैल्यू पुट करेंगे, एंड देयरफॉर लगे तो इसको इक्वेशन दे देंगे. वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन 1 इन अबव एक्सप्रेशन. So what we get here, if you use the value of equation 1, so that gives limit theta tends to 0. यहाँ पे क्या होगा, a plus b, sorry a plus of b minus c is replaced by minus a. तो यहाँ पे क्या होगा, a minus a cos theta minus of, ये टर्म एज इट इज रहेंगे हमारी, minus of b theta sin theta. In denominator there is a theta raised to the power 4 and that is equals to 5. अब और एक बार हम चेक करते हैं, when you apply the limits, when you put the theta is equals to 0, a cos 0 बन जाएगा 1 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा. यहाँ पे भी sin 0 अगर पुट करेंगे तो 0 हो जाएंगे. सो न्यूमरेटर बिकम अ 0. व्हेन यू पुट थीटा इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकम अ 0. तो क्या मिल रहा है हमें, व्हेन यू पुट द लिमिट्स दैट गिव्स अ 0/0. मतलब हर ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी फॉर्म चेक करना पड़ेगा हमको. अगर 0/0 आ रहा है, अगेन वी अप्लाई द कॉचीज रूल. सो कॉचीज रूल अप्लाई करेंगे. अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कॉचीज रूल क्या होता है. वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. अब जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. माइनस ऑफ ए एज इट इज लिखती हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा. उसके बाद यहाँ पे बी एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज देयर आर टू टर्म्स थीटा एंड साइन थीटा. थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन थीटा एज इट इज रहेगा प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा. एंड इन डिनोमिनेटर थीटा रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4 थीटा रेज़ टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 रहेगा आपका एज इट इज. बार उसको अच्छे से देख लो. अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा, यहाँ पे माइनस ऑफ b साइन थीटा, देन माइनस ऑफ b थीटा cos थीटा. In denominator, if you 4 transfer to that side, there is remaining theta cube and here is a 20. Okay, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा टोटल टर्म. Now what we have to do, again अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा है, तो इसको हम a माइनस b कर सकते हैं. साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से. सो हाउ वी राइट दैट टर्म, a माइनस ऑफ b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a माइनस b. सो दैट इज अ साइन ऑफ थीटा.
okay, and there is a minus of b theta cos theta upon theta cube. अब आगे क्या करना है? when you put theta is equals to 0 it become a sin 0, when you put theta is equals to 0 it become a cos 0, तो sin 0 0 हो जाएगा. व्हाट अबाउट ये टर्म भी हमारे 0 हो जाएंगी और डिनोमिनेटर भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो अगेन वी डिफरेंशिएट दैट टर्म. अब यहाँ पे क्या होगा? एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 के फॉर्म में आ रही है हमारी टर्म. सो वी अगेन डिफरेंशिएट थीटा टेंड्स टू 0 इज हियर. यहाँ पे a माइनस बी एज इट इज रहेगा. साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ b इन ब्रैकेट थीटा कॉस थीटा. डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा एज इट इज प्लस सेकेंड टाइम थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट कंप्लीट. In denominator derivative of theta cube is 3 theta square, that is equals to 20. Okay, and now that 3 again transferred to that side. यहाँ पे अगर आप theta equals to 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा और ये टोटल टर्म 0 हो जाएंगे. मतलब when you put the limits, so what you get for theta tends to 0, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका? न्यूमरेटर इज इक्वल टू व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 इज 1, सो देयर इज a minus b. व्हेन यू पुट हियर थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1, सो देयर इज a minus b अगेन. व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट टोटल टर्म बिकम अ 0. सो सिंपली न्यूमरेटर में इतना ही आने वाला है, a minus b दैट इज नथिंग बट a minus 2b. व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? क्या होगा आपका डिनोमिनेटर? व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएंगे. और RHS क्या है आपकी? RHS इज इक्वल टू अगर 3 ट्रांसफर हो जाएगा दैट साइड, सो इट कैन बी रिटन एज 60. मतलब इट इज अ फाइनाइट, ये है फाइनाइट टर्म. ओके, सो फाइनली व्हाट वी गेट व्हेन इट इज RHS इज अ फाइनाइट, you get a minus 2b upon denominator 0 that is equals to 60. so that implies a minus 2b is equals to 0. मतलब हमें फाइनाइट आंसर कुछ तो भी यहाँ पे मिल रहा है. so what we do then, we put a is equals to 2b. so we put finally that implies a is equals to 2b. अब ये a is equals to 2b कहाँ पे पुट करना है? अबाउ टर्म में. तो अबाउ टर्म को हम लगे तो एक स्टेप और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे. so I will rub that. so I will write that simplified form of that term, that is a limit theta tends to 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी कॉस थीटा है, माइनस बी कॉस थीटा है. सो दोनों से माइनस बी थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a minus 2b. वी टेक हियर a minus 2b, और सॉरी वी कैन राइट हियर a, यहाँ से माइनस बी कॉस थीटा, यहाँ से भी माइनस बी कॉस थीटा, सो इट बिकम माइनस 2b. दैट इज अ माइनस ऑफ 2b cos theta. There is also a minus b. Okay, so we take only cos theta there common. If we take a cos of theta common, so what is remaining here? a minus b. यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस ऑफ b आ जाएगा. देन माइनस इज देयर, सो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस b. देयर इज अ थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका? थीटा स्क्वायर, 3 चला जाएगा उस साइड, सो इट बिकम अ 60. सो चेक इट अगेन, a माइनस बी कॉस थीटा माइनस ऑफ b कॉस थीटा. सो कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिया हमने तो a माइनस बी माइनस ऑफ b, माइनस माइनस बिकम अ प्लस b थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, दैट 3 ट्रांसफर टू दैट साइड, इट बिकम अ 60. ओके, एंड नाउ इट बिकम अ a माइनस 2b. लगे तो एक स्टेप और कर लेते हैं हम. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इट इज a minus 2b. here is a cos of theta plus b theta sin theta upon theta square is equals to 60. Now what you have to use here? We have to use a is equals to 2b. We give it equation number 2. use, so हम क्या करेंगे यहाँ पे? use a is equals to 2b.
फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब a इज इक्वल टू, अगर 2b यहाँ पे पुट किया तो 2b माइनस 2b ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो फाइनली बचेंगे क्या, फिर सिंपली देयर इज अ b थीटा साइन थीटा, इतना ही बचने वाला है। सो दैट यूज लिमिट theta tends to 0 when you put a is equals to 2b minus 2b become a 0, so cos theta into 0 become a 0, so remaining b theta sin theta upon theta square there is equals to 60, इतना ही बचने वाला है। अब एक थीटा इसके साथ होगा कैंसिल, तो रहेगा क्या, दैट इंप्लाइज b कांस्टेंट है, b चला जाएगा बाहर, सो दैट गिव्स लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे रहेगा sin थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 60। अब सबको पता है कि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज नथिंग बट अ 1, सो दैट इंप्लाइज b इंटू, इसका रिजल्ट रहेगा 1, b इंटू 1 इज इक्वल्स टू 60, सो दैट इंप्लाइज व्हाट, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 60, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 60। अब b इज इक्वल्स टू 60 कहाँ पे यूज करेंगे हम, इक्वेशन 2 में, यूजिंग in equation 2। what about the equation 2 then, equation 2 में क्या चेंजेस होंगे, a is equals to 2 into 60 that implies 120, a क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, b क्या है हमारा 60 है। उसके बाद आ जाएंगे हम c की तरफ, c कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 है दैट इज b माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस a, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इफ यू ट्रांसफर दैट c टू दैट साइड सो इट गिव्स b प्लस a इज इक्वल्स टू c, सो वी राइट हियर और आई विल रब दैट साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 what we write from equation 1, that is b plus a is equals to that minus c transferred to that side, b plus a is equals to minus c, so now we have b and a here, b is equals to 60 plus a is a 120, so what about the c is nothing but a, that implies c is equals to 180, so in this way we get the value of c, that is a 180, so check it। So in this way we have calculated A, B and C। कैसे किया आप लोगों को ध्यान में आया होगा, 1 by 1 हमने फॉर्म चेक किए, इट इज 0 by 0 और नॉट, व्हेन द फॉर्म इज 0 by 0 सो वी अप्लाई द कॉचीज रूल, फिर कॉचीज रूल अप्लाई करने के बाद जो भी टर्म्स आई उसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट सम रिलेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंट्स, उस कॉन्स्टेंट का रिलेशन लेके फिर हमने पर्टिकुलर वैल्यू उसमें पुट की, सो अगेन दैट एक्सप्रेशन गेट रिड्यूस, ऐसे रिड्यूस करते करते फिर फाइनली we get the values of a b c। तो रिड्यूस करने के बाद एक्सप्रेशन जनरली एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया, सो फ्रॉम दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कांस्टेंट, देन बाय यूजिंग द रिलेशंस एज इक्वेशन 2 and 1 we get the values of a and c। Now one more problem we will see on that same type, here we have to find the values of a and b such that limit x tends to 0 in bracket x raised to the power minus 3 sin 3x plus a x raised to minus 2 plus b equals to 0, ऐसे फॉर्म में है। सो फर्स्ट हमें जो दिया है वी राइट इट प्रॉपर फॉर्म, अभी x raised to minus 3 इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज लिमिट x tends to 0, हियर इज अ साइन ऑफ 3x अपॉन x क्यूब प्लस a अपॉन x स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। नाउ इफ यू सी इन डिनोमिनेटर देयर इज x क्यूब, हियर इज x स्क्वायर, देयर इज नो टर्म्स इन डिनोमिनेटर ऑफ b, सो वी कैन टेक इजीली द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होगा डिनोमिनेटर का एलसीएम, दैट इज x क्यूब, सो वी कैन राइट दैट एक्सप्रेशन एज अ लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो यहाँ पे सिंपली साइन 3x रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे a इंटू एक्स रहेगा एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे b था, b के डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं थी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x क्यूब, मतलब फाइनली व्हेन यू सेपरेट द टर्म यू गेट अ sin 3x अपॉन x क्यूब एज इट इज प्लस a अपॉन x स्क्वायर प्लस b x क्यूब गेट कैंसिल, दैट इज द सेम एक्सप्रेशन यू गेट। ओके, सो वी हैव सिंप्लीफाइड दैट। नाउ व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0,
सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे 0/0 है या नहीं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट a एंड b. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, sin 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, a भी 0 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकम अ 0. सो व्हाट हैपन हियर, द 0/0 फॉर्म, यू गेट द 0/0 फॉर्म. अब क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म है तो अगेन वी अप्लाई द कॉचीज रूल. तो क्या हो जाएगा, बाय द कॉचीज रूल हाउ यू कैन अप्लाई, you can take a derivatives of numerator as well as denominator. So अब यहाँ पे देखो क्या होंगे, डेरिवेटिव्स क्या होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के. by the Cauchy's rule we apply here Cauchy's rule. So derivative of sin 3x is a 3 into cos of 3x. Derivative of sin 3x is a 3 cos 3x plus a into derivative of x is a 1 plus b as it is, derivative of x cube is a 3x square upon x cube का derivative 3x square that is equals to 0. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. अब अगेन वी हैव टू चेक द फॉर्म. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0, cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे e रहेगा, यहाँ पे व्हेन यू पुट 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर भी 0, पर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा बिकॉज cos 0 इज 1 और यहाँ पे a रहेगा. सो फॉर व्हेन यू पुट x टेंड्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, सो दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर क्या होने वाला है आपका, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 3 प्लस a. डिनोमिनेटर क्या होने वाला है आपका, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0. और RHS क्या है आपकी, RHS अगर 0 है दैट मीन्स इट इज अ फाइनाइट. RHS इज अ फाइनाइट. तो फाइनली हाउ यू कैन राइट, you can write 3 plus a by 0 is equals to 0. So that implies 3 plus a is equals to 0. अगर 3 plus a is equals to 0 है, so that implies a is equals to -3. तो हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, a की वैल्यू मिल रही है a is equals to -3. अब हमें ये वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, a is equals to -3 यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब हमारे कांस्टेंट रिड्यूस हो जाएंगे और फाइनली एक ही कांस्टेंट रहेगा. फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ दैट कांस्टेंट. So we use that a is equals to -3 in above expression. So we write here, use a is equals to -3 in above expression. So we use here a is equals to -3 in above expression. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0. यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. देयर इज अ 3 cos of 3x. यहाँ पे a की जगह हम पुट करेंगे -3. यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में देयर इज अ x स्क्वायर 3x स्क्वायर. सो 3 अगर RHS को ट्रांसफर हो जाएगा 3 व्हेन ट्रांसफर टू दैट, सो 0 into 3 इट बिकम अ 0. सो दैट इज इक्वल्स टू, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. अब ये रिड्यूस होने के बाद नाउ अगेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0. सो cos 0 इज अ again 1, so there is a 3 minus 3 become a 0. When you put x is equals to 0, that term become a 0. When you put in denominator x is equals to 0, that term is also become a 0. मतलब अगर 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा फॉर्म आने वाला है 0/0. मतलब again it is a indeterminate form. As it is a indeterminate form, so again you have to apply the Cauchy's rule. That means you have to take a derivative of numerator as well as derivative of denominator. So यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. cos 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू क्या होने वाला है, 3 इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x. ओके, 3 एज इट इज cos 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू माइनस साइन 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 3 दैट इज अ 6bx अपॉन डिनोमिनेटर में 2x is equals to 0. Okay, when you put x is equals to 0 तो ये sin 0 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0, यहाँ पे भी 0 और 2x भी क्या होने वाला हमारा 0. तो अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. देखो अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0. एक हो जाएगा 9, 3 into 3 9, सो माइनस ऑफ 9 साइन ऑफ 3x, यहाँ पे प्लस 6bx अपॉन में है हमारा 2x is equals to 0. Okay, अब हम टर्म करेंगे सेपरेट. Okay, how we separate the term? So we can take here that minus sign limit x tends to 0, और
एज इट इज भी रखा उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, -9 साइन ऑफ 3x अपॉन 2x प्लस यहाँ पे 6bx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे x गेट कैंसिल, यहाँ पे sin 3x है, sin 3x अपॉन 3x रहता था तो उसका रिजल्ट आता था 1, तो हम यहाँ पे 3 के एडजस्टमेंट कर देंगे, 2 इंटू 3x। अब 3x किया है यहाँ पे एडजस्ट, तो यहाँ पे 3 भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, सो दैट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर -3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में is a 27/2 and here is a sine of 3x by 3x plus 6b by 2 that is a 3b is equals to 0। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, sin 3x upon 3x is nothing but a 1, so when you put the limit there is a 1, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे आने वाला आपका -27/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म में आपको मिलने वाला है आंसर। ओके, सो अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका -27 प्लस 6b इज इक्वल टू 0, सो दैट इम्प्लाइज 6b इज इक्वल टू 27, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 27 बाय, शायद ये आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, सो दैट implies b is equals to 27/6, that is nothing but a 3 2s are 6, 3 9s are 27, so it becomes b is equals to 9/2, we get b is equals to 9/, that step -27 plus 6b is equals to 0 I will write on that side, so it gives 6b is equals to 27, that implies b is equals to 27/6, that is nothing but a 9/2, तो b क्या आ गया हमारा, b इज इक्वल्स टू 9/2 और a ऑलरेडी हमें मिल चुका था, दैट a इज इक्वल्स टू -3, सो इन दिस वे वी गेट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ। और एक प्रॉब्लम आप लोगों को मैं ऐसे ही होमवर्क के लिए देती हूँ, आई हैव गिवन हियर सम प्रॉब्लम्स फॉर योर होमवर्क। First is to find the values of a and b such that limit x tends to 0 in bracket x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube, that should be equals to 1। ये इसकी वैल्यू अब जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में वैल्यूज निकाली है, you have to find here a is equals to -5/t and b is equals to -3/2, you have to find it। ओके, उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that limit x tends to 0। अब जैसे ऐसे ही एक प्रॉब्लम हमने देखा था, सिंपली यहाँ पे sin 3x था तो यहाँ पे sin x है प्लस ax प्लस bx क्यूब अपॉन x cube, so you have to find again a and b, a should be a equals to -1, b is equals to 1/6, that is for your homework। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है लिमिट के प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालने है, यहाँ पे आपको लिमिट का जो रिजल्ट है वो निकालना है। सो फर्स्ट जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम देखे थे, फर्स्ट आपको फॉर्म चेक करना पड़ेगा कौन सा है, व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 1, सो हियर इज अ 1, √1 इज अ 1, 1 - 1 0, हियर इज अ रूट ऑफ 1 - 1 अगेन अ 0, यहाँ पे 1 - 1 0, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो फॉर्म आ रहा है आपका 0/0, सो यू कैन अप्लाई हियर इन कॉचीज रूल, और कॉचीज रूल अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद योर आंसर शुड बी लिमिट इज इक्वल्स टू 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x रेज़ टू द पावर 1/x²। अब इसका फॉर्म कौन सा है, व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0, सो sin x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है का, इसका रिजल्ट रहता है व्हेन x टेंड्स टू 0 दैट इज अ 1, सो ये हो जाएगा आपका 1। व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0, सो इट बिकम 1/0, और आप लोगों को पता है कि 1/0 इज नथिंग बट इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा ये। बट आप लोगों को पता है अगर 1 रेज़ टू इंफिनिटी है, 0 रेज़ टू इंफिनिटी है, 0 रेज़ टू 0 है, अगर ऐसे फॉर्म में आते हैं आपके प्रॉब्लम, सो व्हाट यू हैव टू डू, यस यू हैव टू टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे आपको l इज इक्वल्स टू आप कंसिडर कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है आपका साइन ऑफ x अपॉन x रेज़ टू द पावर 1/x², सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, टेक लॉग ऑन
both sides. You have to take a log on both sides. So it gives a log of L is equals to limit x tends to 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/x² into log of 1/x² into log of sin of x by x. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये. अब आपको पता है कि अगेन sin x by x when you put x tends to 0 that become a 1. So log 1 is nothing but a 0. When you put here x is equals to 0 it become a infinity. So यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपका infinity into 0 और उस फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है 0/0 या infinity by infinity. So how you can write? You just put here limit x tends to 0. ये टर्म आप एज इट इज रखो लॉग की न्यूमरेटर में और x² को डिनोमिनेटर में ले लो. सो दैट फॉर्म इज रिड्यूसेस टू 0/0 और infinity by infinity. So you can easily get the answer. Okay, so that is problem for you. और इसका आंसर है यहाँ पे L is equals to e raised to -1/6. So hope you understand all that part. यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट का, दैट इज अ रोल्स थ्योरम एंड mean value theorem. So that we will check learn in a next lecture. So we will stop here. Thank you.